So today we are here to start with our one of the wonderful subject, that is auditing and ethics for CA Inter new course. What I will try to make this theory subject a much more practical for you so as to understand the concepts in a better manner. So to brief you about my professional background, so I have done my articleship into auditing background. Then I qualified in November 20 attempt with All India rank 45. And then I have done my job, initial 3 year jobs in an auditing firm. So I have a background of audit, and I will try to link what I've learned in those 6 years of auditing to what has been written in the books to help you students excel in your exam. So that's the objective and vision of these classes. So hope you are clear what is the vision going to be for these classes. And we will try our primary base material would be the institute's book summarized with our own summary notes that are prepared for you to prepare to excel and summarize all the concepts for your exams. So that is the idea. Let me just start right away with our chapter number 1, that is nature, scope, and objectives of audit. Let me just share my screen and let me just explain you overall concepts. Allow me 1 second, please. हाँ जी. So origin of auditing. Auditing आया कहाँ से? ठीक है. Auditing obvious सी बात है, जब मैनेजमेंट ने फिनेंशियल्स बनाए तो उसमें किसी एक बंदे को बोलना था जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं क्या वो एक यूजर यूज कर सकता है. सो टू एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ यूजर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट वाज इवॉल्व्ड. इट वाज वे बैक इन 4th century BC in India, जहां पे ऑडिट का कॉन्सेप्ट आ गया था, wherein financial statements were prepared, and to enhance the confidence of the users of financial statements, it was required to be audited. So let me just show you some of the practical examples where auditing is being done. So I have just searched on the net Reliance annual report. So just let us glance through the annual report and learn the concepts of auditing in the practical manner. Let us first. So audit, why was it required? It was required because management prepared the financial statements and for shareholders. देखो होता क्या है, एक कंपनी में शेयर होल्डर ने पैसा लगा रखा है, राइट. तो पैसा किसका लगा हुआ है? शेयर होल्डर का. बिजनेस चला कौन रहा है? मैनेजमेंट चला रहा है. ठीक है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बना रहा है? मैनेजमेंट बना रहा है. तो शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, क्रेडिटर्स, अदर यूजर्स लाइक बैंक, अदर्स, उन सबको अगर इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ऊपर रिलाय करना है तो एक किसी थर्ड पार्टी दैट इज एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल शुड सर्टिफाई दैट दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फिट फॉर यूसेज बाय द अदर पार्टीज. करेक्ट. So this is the background and backdrop of the auditing. So let me just show you the Reliance part. Basically, let us just read through and glance through the annual report of Reliance Industries. Reliance Group की अगर अपन आज बैलेंस शीट पढ़ते हैं तो उसमें ऑडिटर ने क्या लिखा है, लेट अस जस्ट गो थ्रू. ठीक है. अभी it would be a very high thing for you, but let me just touch you some of the practical insights of audit so as to help you understand that this is audit. ठीक है. अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, लेट मी जस्ट दीज आर द मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस. दिस इज द मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस सेक्शन. थिंक परफॉर्मेंस अपडेट्स.
Yeah. So just we are on the right page. So independent auditors report. Let me just show you the final report. So it's based on the corporate governance. मैं अभी बताता हूँ, ये आपके लिए बहुत नई चीज है. Let me just walk you through. ठीक है? Just bear with me, right? So the word important point of view is noted to this word, independent auditors report. So what it is written is independent auditors report. ठीक है? तो मतलब एक auditor should be an independent of the organization for which he is auditing the financial statements. ठीक है? तो एक ये word आपको important note करना है. ठीक है? To whom the audit report is addressed. तो मैंने आपको क्या बोला? अभी कंपनी के केस में पैसे किसके लगे हुए हैं? शेयर होल्डर्स के लगे हुए हैं. सो द रिपोर्ट इज एड्रेस टू द शेयर होल्डर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. सो द रिपोर्ट इज addressed to them, but yeah, there might be many users of these financial statements. तो ठीक है, अभी let us try to learn the definition of auditing. ठीक है, अभी अपन auditing तो को समझने चलते हैं. ठीक है, an audit is an independent examination. किसका? फिनेंशियल इंफॉर्मेशन का. ठीक है, ऑफ एन एंटिटी, चाहे वो एंटिटी प्रॉफिट मेकिंग है, चाहे वो नॉट प्रॉफिट मेकिंग है, चाहे वो छोटी है, चाहे वो बड़ी है, चाहे वो एक सोल प्रोप्राइटर है, लीगल फॉर्म मींस, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो पार्टनरशिप है, चाहे वो एनजीओ है, या चाहे वो ट्रस्ट है. तो इट्स एन इंडिपेंडेंट. द वर्ड इज इंपॉर्टेंट. इंडिपेंडेंट मतलब ही शुड बी एन इंडिपेंडेंट. ठीक है, एन ऑडिटर शुड बी एन इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो एन ऑडिट इज एन independent examination of financial statements, financial information of an entity, whether it's a profit oriented or not profit oriented, irrespective of its size or legal form. When such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon. तो मैंने अभी देखो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडिटिंग की डेफिनेशन पे. एक है इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन और दूसरा है विद द व्यू ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन. अभी आप देखोगे ना इस रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिपोर्ट में he has given his opinion. तो it's a very important part of the audit that you express an opinion. तो it's an independent examination. देखो आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज की ऑडिट रिपोर्ट के बारे में याद करना है और आपको बोलना है वहां पे हेडिंग क्या थी? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. सो इट्स एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. किसका? ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन. किसकी? ऑफ एन एंटिटी. अब वो एंटिटी प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकती है, नॉट प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, ट्रस्ट भी हो सकती है. तो मैंने बोला इट्स एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. किसका? फिनेंशियल इंफॉर्मेशन का. किसकी? एक एंटिटी की. वो कैसी हो सकती है एंटिटी? इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, लीगल फॉर्म, एंड वेदर इट्स अ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी और नॉट प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी. अब ये ऑडिट हो क्यों रहा है? व्हाई दिस independent examination is being carried out? तो इसका सिंपल आंसर है फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयरऑन. किसके ऊपर? फिनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर. तो अभी अपन को ऑडिटिंग की डेफिनेशन लर्न हो गई है. अपन ने बोला इट्स एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, चाहे वो छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग हो. किस लिए कर रहा है अपन ऑडिट? अपन ऑडिट इसलिए कर रहा है विद व्यू टू एक्सप्रेस एन ऑडिट ओपिनियन देयर ऑन. तो ये अपन का इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज की मैं आपको दिखा रहा हूं, जो कि एड्रेस्ड है टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी और इसमें ओपिनियन दे रखा है. अभी ओपिनियन पैराग्राफ में क्या लिखा है? वी विल जस्ट रीड थ्रू. तो इसने क्या बोला? We have audited the accompanying consolidated financial statement of RIL, including joint operation and its subsidiaries, and the group share profit in associates and joint venture, which comprises the consolidated balance sheet. अब इसने फिनेंशियल इंफॉर्मेशन का पार्ट बताया. फिनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या आती है? बैलेंस शीट, टाई एंड एल, कैश फ्लो, सोकी अभी आपको नहीं पता होगा, मैं समझाऊंगा, सब चीजें समझाऊंगा, बस थोड़ा वेट करना है. ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड अ समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अदर एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन. अब ओपिनियन में क्या बोला? इन आवर ओपिनियन and to the best of information and according to the explanation given to us,
and based on the consideration of the reports of the other auditors on separate or consolidated financial statement or financial information of the subsidiaries, associate and JV referred to in the other matter section below, the aforesaid CFS give the information required by the Companies Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with Indian accounting standards prescribed under section 133 of the Act, read with Companies Ind AS rules 2015. मतलब इसने क्या बोला, the financial statements are in compliance to the applicable FRF, ये जो है ना accounting standards notified under section 133 of the Act and along with the rules, ये क्या है, इंड एस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो दीज आर दी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो अभी मैंने क्या बोला, ऑडिटिंग की डेफिनेशन, लेट्स मूव ऑन टू आवर नोट्स। तो मैंने बोला एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, वेदर प्रॉफिट मेकिंग नॉट प्रॉफिट मेकिंग, साइज है, छोटी है, बड़ी है, क्या फर्क पड़ता है, विद अ व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन thereon. It's an independent examination. अभी इंडिपेंडेंस क्या होती है, ठीक है, इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है, मेरी जो प्रोफेशनल जजमेंट है वो इट शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अनदर पर्सन. सो द जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट. सबऑर्डिनेट मींस नीचे, मतलब एक बंदे की जजमेंट किसी दूसरे बंदे की जजमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं हो सकती. सो माय जजमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू दी wishes or direction of another person. So I am independent. So when a person is independent, तो इंडिपेंडेंट बंदा एक्चुअल में होना भी चाहिए और वो बंदा दिखना भी चाहिए, दोनों चीजें होती है. तो इंडिपेंडेंस शुड लुक इन अपीयरेंस, ये कॉन्सेप्ट में आपको आगे के चैप्टर्स में कवर होगा, बट यू शुड कीप इन माइंड, जरूरी नहीं है कि बंदा, अगर लेट सपोज मैं अपने भाई का ऑडिट करने जा रहा हूँ, हम दोनों भाइयों के बीच में इंडिपेंडेंस है, मैं ये बोल रहा हूँ माई जजमेंट is not subordinate to the wishes or direction of my brother, but this is independent in my thoughts, but it is not independence in my appearance, क्योंकि मैं उसका भाई हूं. तो सोसाइटी परसीव दैट आई माइट नॉट बी इंडिपेंडेंट, तो भी मैं उसका ऑडिट नहीं कर सकता. मतलब इंडिपेंडेंस दो एस्पेक्ट्स की होती है. इंडिपेंडेंस शुड बी परसीव्ड बाय द अदर्स दैट यू आर इंडिपेंडेंट. मतलब अगर आप अपने भाई की फर्म को ऑडिट कर रहे हो, ठीक है, लेट्स से अनिल अंबानी वाज अ सीए एंड मुकेश अंबानी वाज द क्लाइंट. अगर अनिल अंबानी मुकेश अंबानी का एक ऑडिट करता, तो भले वो चाहे इंडिपेंडेंट हो, लेकिन इट्स नॉट एन इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो इंडिपेंडेंस मींस that the judgment of a person is not subordinate to the wishes or direction of another person. ठीक है, मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी जो ऑडिटर है is not subordinate, मतलब his judgment is not subordinate to the wishes or direction of the another person. तो ये अगर है तो he is independent, ठीक है. अब अभी इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करना क्यों है? The auditor should be independent of the entity whose financial statements are subject to audit, so that he can form an opinion without being affected by the influence. तो अभी अपन ने क्या पढ़ा, वापस से लेट्स रिवाइज. इट्स एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ठीक है, ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटिटी विद द व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयरऑन. ठीक है, इंडिपेंडेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है my judgment are not subordinate to the wishes or direction of some another person. ठीक है, so independence here implies means that the judgment of a person is not subordinate to the direction or supervision डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन. ठीक है, सिंपल हो गया. अभी इंडिपेंडेंस जरूरी क्यों है? ताकि मैं अपना ओपिनियन इंडिपेंडेंट फॉर्म कर पाऊं विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय एनी इन्फ्लुएंस, ताकि मैं एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे पाऊं. अभी स्टडी मैट में 2-4 एग्जांपल्स है जहां पे क्या बोला गया है, एक बंदा अपने भाई का ऑडिट करने जाता है, क्या वो ये इंडिपेंडेंट है? तो जवाब है नहीं, वो इंडिपेंडेंट नहीं है. भले ही आपको मतलब आप चाहे जो मर्जी सिचुएशन में देख लो, मतलब अगर भले ही आपकी जजमेंट नहीं इन्फ्लुएंस होती, लेकिन सोसाइटी परसीव्स कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, तो आप यू कांट ऑडिट. ठीक है, आप उसका ऑडिट नहीं कर सकते. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल.
जहां पे मेरा एक कंपनी में शेयर्स पड़े हैं, ठीक है। अभी मैंने बोला ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको एड्रेस कर रहा है, शेयर होल्डर्स को कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो इस बंदे के इसी कंपनी में शेयर्स है और अगर इसको कोई गलती मिलती है इस फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ठीक है, और इसको पता है अगर ये गलती ये डिस्क्लोज करता है तो शेयर का प्राइस गिर जाएगा, ठीक है, गिर जाएगा, तो क्या ये बात बताओ, क्या कभी ये ऑडिट रिपोर्ट में वो चीज लिखेगा? तो जवाब है नहीं। इसलिए क्या है, इट गिव अराइज टू दी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, जो कि स्टडी मैट में लिखा है। टेक अनदर केस वेयर अ सीए हैज इन्वेस्टेड इन शेयर्स ऑफ अ कंपनी, कैन ही ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ सच अ कंपनी इन विच ही होल्ड शेयर्स? तो जवाब है नो, नो, नो। तो ठीक, अगर उसको कोई गलती मिली और उसको ऐसा लगेगा कि इसकी वजह से प्राइस शेयर का नीचे जा सकता है, तो ही विल नेवर डिस्क्लोज दैट थिंग। तो लेट्स रिवाइज व्हाट इज ऑडिटिंग। ऑडिट इज एन independent examination of a financial information of an entity with a view to express an opinion thereon, ठीक है, ये ऑडिट है। अब अपन चलते हैं, इट्स एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। एंटिटी क्या हो सकती है, प्रॉफिट ओरिएंटेड भी हो सकती है, साइज, लीगल फॉर्म, ये सब मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। प्रॉफिट भी हो सकती है, नॉन प्रॉफिट एंटिटी भी हो सकती है, साइज में छोटी भी हो सकती है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फॉर्म मतलब प्राइवेट एंटिटी भी हो सकती है, प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, एलएलपी भी हो सकती है, पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, सोसाइटी भी हो सकती है, ट्रस्ट भी हो सकती है, ठीक है। अब मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस है टू फ्रेम एन ओपिनियन दे रहा हूं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पॉइंट है, अंडरस्टैंड दैट प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के ऑडिटर को देने हैं, एंड ऑडिटर का काम है उसको इंडिपेंडेंटली एग्जामाइन करके अपना ऑडिट ओपिनियन फॉर्म करना है, ठीक है। द ऑडिटर एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय मींस ऑफ अ रिटन ऑडिट रिपोर्ट, जो कि अभी अपन ने देखी। इन डूइंग सो, मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट बना के देगा, ऑडिटर हैज टू गिव हिज ऑडिट रिपोर्ट। तो पर्पस ऑफ द ऑडिट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अभी जब उसको ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, ठीक है, इन डूइंग सो ही हैज टू सी दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वुड नॉट मिसलीड एनीबडी बाय एंश्योरिंग दैट। अभी उसको क्या चीजें इंश्योर करनी है, जब वो अपना ओपिनियन दे रहा है, ही हैज टू इशू द ऑडिट ओपिनियन बाय मींस ऑफ अ रिटन रिपोर्ट, ठीक है। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट बना के देगा आपको। अभी इस क्वेश्चन को पेपर में कैसे आ सकता है, ये क्वेश्चन बहुत तरीके से आ सकता है। तो आपको वो पेपर में स्टार्टिंग लाइन लिखिएगा कि पर्पस ऑफ द ऑडिट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। अभी पर्पस ऑफ एन ऑडिट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट एन ऑडिटर नीड्स टू एंश्योर that in order to ensure that the financial statement would not mislead anybody। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है, अब मुझे क्या करने पड़ेंगे, प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। अभी मैं प्रोसीजर्स में क्या क्या परफॉर्म करूंगा, अभी देखो इसमें सिंपल है। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ अकाउंट, सबसे पहले क्या होता है, एक ट्रांजैक्शन होता है जिसकी एक सपोर्टिंग होती है, ठीक है। उस सपोर्टिंग के बेसिस पे जर्नल एंट्री फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डलती है, जब जर्नल एंट्री डल जाती है तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वही फ्लो मैंने यहाँ पे लिखा है, जर्नल एंट्रीज पास बेस्ड ऑन दी सपोर्टिंग। सपोर्टिंग क्या हो सकती है, जैसे परचेज का इनवॉइस, परचेज का परचेज ऑर्डर, एक्सपेंस का वाउचर, ठीक है, खर्चा हुआ खर्चे का वाउचर, ठीक है। तो परचेज इनवॉइस, परचेज ऑर्डर, एक्सपेंस वाउचर, और भी मल्टीपल टाइप ऑफ सपोर्टिंग हो सकती है। तो जर्नल एंट्री डली बेस्ड ऑन दिस सपोर्टिंग, ठीक है। जर्नल एंट्री से क्या बने, जर्नल एंट्री पोस्टेड बेस्ड ऑन दी एंट्रीज सपोर्टिंग। अब इसके बेसिस पे एंट्रीज डली, इसके बेसिस पे अकाउंट्स बने, ठीक है। फिर अकाउंट्स में फिर डिस्क्लोजर्स और ये सब डालने हैं। तो अभी मुझे जब ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, द पर्पस ऑफ एन ऑडिट इज टू एक्सप्रेस एन ऑडिट ओपिनियन देयर ऑन, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये देखना पड़ेगा द अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप विद रेफरेंस टू द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब अकाउंट्स किसके, अकाउंट्स किससे बने, एंट्रीज से। accounts have been drawn up with reference to the entries in the books of account. The entries in the books of account are adequately supported by sufficient and appropriate evidence। तो मतलब accounts किससे बने, entries से, entries किससे बनी, supporting evidence से, ठीक है। and none of the entries, अभी entry कोई भी देखो, अकाउंट्स किससे बने, एंट्री से, तो कोई भी एंट्री नहीं छूटनी चाहिए इन द इंक्लूजन ऑफ, इफ कोई भी एंट्री नहीं छूटनी चाहिए फॉर इंक्लूजन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो नन ऑफ द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैज बीन ओमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन। तो
सबसे पहला पॉइंट क्या है? The accounts have been drawn up with reference to the entries in the books of account. Entries has been drawn up with reference to the supporting document. ठीक है, that would provide me the sufficient and appropriate audit evidence. ठीक है, तो मैंने क्या बोला, आप सिंपल समझो, accounts have been drawn up with reference to the entries in the books of account. Entries in the books of account are supported by the sufficient and appropriate audit evidence like expense voucher, परचेज इनवॉइस, परचेज ऑर्डर्स, सेल्स इनवॉइस, सेल्स ऑर्डर, ठीक है, ये सारी चीजें है ना। एंड नन ऑफ द एंट्रीज, कोई भी एंट्रीज ओमिट नहीं हुई है फ्रॉम इंक्लूजन इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। एंड इंफॉर्मेशन अब क्या बन गया, अकाउंट्स बन गए, ठीक है। अब जो इंफॉर्मेशन है ना, जो वो दे रहा है अकाउंट्स, ठीक है, द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस मींस जिसमें कोई भी डाउट ना हो, मतलब इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर, इट शुड बी वेरी वेरी एप्ट, मतलब इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। एम्बिगुअस क्या होता है? एम्बिगुअस मींस होता है कि कंफ्यूजन है, तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय द स्टेटमेंट शुड बी वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। अब इसमें क्या होना चाहिए? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अमाउंट आर प्रॉपर्ली क्लासिफाइड। क्लासिफाइड मींस करंट एसेट को करंट एसेट दिखाया है, ठीक है, करंट एसेट्स को करंट एसेट दिखाया है, नॉन करंट एसेट को नॉन करंट एसेट दिखाया है, ठीक है। एंड डिस्क्लोजर इज इन कंफर्मिटी विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो मैंने बोला क्लासिफिकेशन इज अप्रोप्रिएट, डिस्क्लोजर इज अप्रोप्रिएट, ठीक है। एंड द स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट प्रेजेंट अ true and fair picture of the operational result and of the assets and liabilities. तो अभी जैसे अपन ने यहाँ पे पढ़ा, तो अभी अपन ने क्या पढ़ा था यहाँ पे? It provides a, in our opinion and based on the consideration, the aforesaid financial statements, ठीक है, are prepared and other account and of the consolidated another accounting standard other the aforesaid in the manner so true and fair view, true and fair view, मतलब हम ट्रू एंड फेयर व्यू पे ओपिनियन देते हैं, ठीक है। तो आपकी रिलायंस की मैंने आपको ऑडिट रिपोर्ट पढ़ाई, जहां पे अपन ने सबसे पहले पढ़ा इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, फिर हमने पढ़ा ओपिनियन पैराग्राफ, सबसे पहला पैराग्राफ होता है। तो हमने यहां से ऑडिट की डेफिनेशन को लर्न किया। हमने बोला ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी चाहे प्रॉफिट बनाने वाली हो, चाहे नहीं प्रॉफिट बनाने वाली हो, चाहे वो छोटी हो, चाहे फिर वो बड़ी हो, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो। तो मैंने क्या किया, इट्स एन ऑडिट ऑफ अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन, मतलब मुझे अपना ओपिनियन देना है उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अपन ने ला दी। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन में फिर हमने पढ़ा कि माय जजमेंट मतलब इट्स एन इंडिपेंडेंस इज अ सिचुएशन इन विच अ जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस ऑफ डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है। इंडिपेंडेंस ये चीज होती है। इंडिपेंडेंस जरूरी क्यों है? ताकि मैं अपना एक ओपिनियन दे पाऊं ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अभी हमने ये पढ़ा सारे सिचुएशन। इंडिपेंडेंस मींस अ जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विशेस और डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन एंड द ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी, ताकि वो फॉर्म कर पाए एक ओपिनियन उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। अब चलते हैं अपन इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके लिए वो क्या करेगा? उसके लिए वो देखेगा द अकाउंट्स, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स has been prepared with reference to the entries in the books of account. The accounts have been prepared with reference to the entries in the books of account. अब entries are adequately supported by sufficient and appropriate audit evidence, ठीक है ना। entries in the books of account are adequately supported by sufficient and appropriate audit evidence। कोई भी एंट्री छूटी नहीं है फ्रॉम दी इन द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन ऑफ द अकाउंट्स, ठीक है। none of the entries in the books of account has been omitted in the process of compilation, and information conveyed by the accounts statements is clear and unambiguous, and the financial statements amounts are properly classified, described and disclosed in conformity with the accounting standard, and the statement of accounts present a true and fair picture of the operational results and assets and liabilities। तो ये अपन ने पूरा ऑडिट को, मीनिंग ऑफ ऑडिट को, हम इस टॉपिक को वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन मच 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 डिटेल, ठीक है। तो लेट्स लर्न इट एंड लेट्स ट्राई टू समराइज इट।
ठीक है। एक लाइन रहेगी, ऑडिटिंग प्रोवाइड्स अश्योरेंस। अभी अश्योरेंस में अपन बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अश्योरेंस इज अ बिग टर्म एंड ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ इट, ठीक है। अभी हम आगे जाके इन नेक्स्ट some sort of subsequent lectures we will try to learn this concept, but as of now you just learn that assurance is a big concept. Assurance means one person is giving assurance to another person. क्या it's मतलब it is providing confidence to the users of the financial statement. Assurance means क्या होता है, आप किसी दूसरे बंदे को कॉन्फिडेंस दे रहे हो कि भाई हाँ यार ये चीज सही है, ये अपन की गलत नहीं हो सकती। तो अश्योरेंस एंगेजमेंट मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंस टू दी अदर पर्सन, ठीक है। तो ऑडिटिंग इज वन ऑफ द अश्योरेंस एंगेजमेंट फॉर अ रीजन। आप क्या कर रहे हो, आप फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पे यूजर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हो, इट्स इसलिए ऑडिट इज एन अश्योरेंस एंगेजमेंट, ठीक है। तो अश्योरेंस इज अ बिग टर्म एंड ऑडिट इज अ पार्ट ऑफ इट। तो अभी अपन ने क्या पढ़ा, ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन of financial information of an entity, whether profit oriented, not profit oriented, with a view to express an audit opinion thereon, है ना, with a view to express an opinion thereon। फिर हमने बोला अगर मुझे ओपिनियन देना है तो द पर्पस ऑफ द ऑडिट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। अभी फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, अब मुझे ओपिनियन देना है। इन डूइंग सो मतलब इन providing my opinion, what I should ensure that the accounts have been prepared with reference to the entries in the books of account। कोई भी एंट्री छूटी नहीं है फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट इन द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन, कोई भी एंट्री छूटी नहीं है फ्रॉम इंक्लूजन इन द अकाउंट्स इन द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन। अभी जो एंट्री डली है दैट इज सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, ठीक है। ये हो गई आपकी चीज। जो इंफॉर्मेशन ऑफ जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स दे रहा है दैट इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, और जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज ट्रू एंड फेयर व्यू, और जो क्लासिफिकेशन हुआ है, डिस्क्लोजर हुआ है, दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स आर प्रॉपर्ली क्लासिफाइड, डिस्क्लोज इन कंफर्मिटी विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जब आप देखोगे ना ऑडिट रिपोर्ट, तो इसने भी ये लिखा है ना, इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, इट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू इन कंफर्मिटी विद द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो मतलब the financial statements are properly classified, disclosed in conformity with the accounting standards। ये अपन ने ये टॉपिक्स को कवर कर लिया है। let us then just first cover the origin of auditing, ठीक है। ये we should have ideally covered it before it, but I wanted to go through first practical aspect and then learn a bit of theory, ठीक है। तो अभी अपन ने रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट खोली, वहां से अपन ने ऑडिटर्स को रिपोर्ट को पढ़ा, ठीक है। अभी ऑडिटिंग कहां से निकला, ऑडिटिंग का जो टर्म है ऑडिट वाज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑर्डर, ठीक है। इसका मतलब होता है टू हियर, ठीक है। तो ऑडिट वर्ड निकला ऑर्डर से, ऑर्डर का मतलब होता है टू हियर, तो सुनना। तो पहले के टाइम में इन मेडिवल टाइम्स ऑडिटर यूज्ड टू हियर, मतलब पहले के टाइम्स में क्या होता था, ऑडिटर यूज्ड टू हियर द अकाउंट्स read out to them by the management to check that the employees were not careless and negligent। तो इस तरीके से इसका ओरिजिन हुआ। पहले के टाइम पे अकाउंट्स को बोला जाता था और वहां पे देखा जाता था कि ये कोई गलत तो नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ओरिजिन मतलब इस तरीके से ऑडिट वर्ड हैज बीन डिराइव्ड, ऑडिट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ऑर्डर। Order means to hear. In the ancient times, people used to read aloud the financial statements, and the auditor used to hear it, and therefore this word audit has been derived। अभी भारत के कंटेक्स्ट में ऑडिट कब आया, ऑडिट सबसे पहले तो बहुत पुराना टर्म है भारत के कंटेक्स्ट में। इफ वी लुक बैक टू अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में लिखा है दैट it talks about the accounting year, a process for closure of accounts and audit for the same। तो इस अर्थशास्त्र की बुक जो कि 4th सेंचुरी बीसी में थी, बनी थी, उसमें भी इसका जिक्र है, ठीक है। लेकिन फॉर्मल ऑडिट का कंटेक्स्ट तब आया जब भारत में ब्रिटिशर्स ने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि 1860 में अपॉइंट हुआ। ये ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बाद में जाके बना कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इट्स अ वेरी रिनाउंड पोजीशन नाउ इन इंडिया। सीएजी इज अ ऑफिस, सीएजी इज अ ऑफिस जो कि ऑडिट परफॉर्म करता है
of all the government entities including public sector entities. Public sector entities क्या होती है? Public sector entities means जहां पे गवर्नमेंट का 51% से ज्यादा पैसा लगा हुआ है. Examples are इरकॉन, इरेडा, ये आप ले लो. बहुत सारी पीएसयूज है, बहुत सारी पीएसयूज है. तो इन सबका सीएजी ऑडिट होता है. तो होता क्या है, इनमें सीएजी एक ऑडिटर को अपॉइंट करता है. आप जब सेक्शन 139 पढ़ोगे ना लॉ के अंदर, तो जब ऑडिटर अपॉइंट होता है इन केस ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी, इन केस ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी जब ऑडिटर अपॉइंट होता है, तो गवर्नमेंट कंपनी के केस में जब ऑडिटर को अपॉइंट कौन करता है? सीएजी अपॉइंट करता है. दिस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, और जो वो ऑडिटर ऑडिट करता है उसके बाद सीएजी भी ऑडिट करता है. दैट इज नोन एज सप्लीमेंट्री ऑडिट. ठीक है, ये आप लॉ में ऑब्वियसली कंपनीज ऑडिट का जो चैप्टर है उसमें आप यू विल लर्न दिस. तो अभी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया लेट अस रिवाइज. ठीक है, let us revise. In the global origin, audit has been derived from the word audire, which means to hear. In ancient times, the auditor used to hear the accounts which were told to them, and then in the context of the India, it was first done in the Arthashastra, jahan pe basically it talks about the accounting year, then the process for closure of accounts and the audit for the same. Then the first Auditor General of India was appointed in 1860 by the Britishers, and then this became the office of CAG. CAG in India now do the audit of all government companies. CAG appoints a Indian firm for auditing the accounts of the PSU, and then a supplementary audit is also performed by CAG. अभी ये सब टर्म्स आपको थोड़े से कॉम्प्लेक्स लग रहे होंगे, but just give me some time. Just allow me these you can say these lectures to go on, and hopefully by the end of these lectures you will be very comfortable with these terms. ठीक है, फिर ऑडिट का कंटेक्स्ट बना जब आईसीआई बना. आईसीआई कब बना? 1949 में इंस्टीट्यूट वाज सेट अप, एंड देयरफॉर there was a boom in the auditing field. So ICAI was set up in 1949. Before that, CAG office already बन चुका था because it was set up by the Britishers. Then so that's primarily the origin of audit in the context of India. ठीक है, so we have learned through all these concepts. So let me just I think we have learned pretty much. Let me just summarize it once. So auditing is an independent examination of a financial information of an entity with a view to express an opinion thereon. अगर आपको ओपिनियन देना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा? That the accounts have been prepared with reference to the entries in the books of account. Entries in the books of account are supported by the sufficient and appropriate evidences. ठीक है, and then no entries omitted. जो statements है that is unclear and unambiguous. ठीक है, कुछ भी clarity उन सारे, अगर आपको opinion देना है और आपको ये देखना पड़ेगा क्लासिफिकेशन इज अप्रोप्रिएट, डिस्क्लोजर्स आर अप्रोप्रिएट. ठीक है, तो ये अपन ने ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट समझ लिया है. वी विल नाउ टर्न टू अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज आई थिंक let me just explain you. 1 minute. Yeah, let's touch upon the interdisciplinary linkage between the audit and various other subjects. So what this topic is all about. So it says that auditing is linked to accounting. Obviously, you are performing auditing on the output of the accounting. Output of the accounting is the financial statement, and you are auditing it. So the auditing and accounting are both interrelated, right? Auditing reviews the financial statements, which are nothing but a result of the overall accounting process. And now how auditing and laws are related, right? So you have a subject called law in your curriculum, right? But why it's there? So obviously for auditing, for you to be auditing in a good manner, you need to be very well versed with the prevalent law, including business laws, taxation laws. तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, right? So auditing and law both are interrelated, right? Then coming on to economics and auditing, right?
सो ऑडिट एंड इकोनॉमिक्स के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभी लेट्स सपोज द टुडेज न्यूज इज दैट ईरान हैज अटैक्ड ऑन इजराइल, ठीक है, ये इकोनॉमिक इवेंट चल रहा है, ठीक है। तो अगर ईरान और इजराइल के बीच में अगर युद्ध चल रहा है तो ऑब्वियसली बात है बोथ आर रिलेटेड टू क्रूड क्रूड ऑयल, ठीक है। तो अगर आप किसी क्रूड कंपनी का ऑडिट कर रहे हो जहां आपको पता है कि भाई क्रूड ऑयल, जैसे लेट सपोज हिंदुस्तान पेट्रोलियम का अगर आप ऑडिट कर रहे हो, तो वहां पे फिर उनकी सप्लाई चेन में इश्यूज आ जाएंगे। सप्लाई चेन मींस जो इजराइल से इंपोर्ट करना है क्रूड ऑयल, उसमें इश्यूज आएंगे, ठीक है। तो अभी आपको ये पता होना चाहिए बोथ इकोनॉमी एंड ऑडिट्स आर इंटर रिलेटेड, यू कांट ऑडिट अलोन while excluding economics, ठीक है। तो इकोनॉमी एंड ऑडिटिंग बोथ गो हैंड इन हैंड, ठीक है। So auditor is expected to be familiar with the overall economic environment of the client in which business is operating, ठीक है। अभी फिर बिहेवियरल साइंस, अब आपको ऑडिट में क्लाइंट के पास जाना पड़ता है, उससे बातें करनी पड़ती है, ठीक है। तो आपको ये आपसे उसको डेटा निकलवाना पड़ता है, ठीक है। तो इफ यू हैव डन एक्चुअल ऑडिटिंग, अभी आप आर्टिकलशिप में जब जाओगे ना तो यू विल डू ऑडिट्स, ठीक है। तो वहां पे आपको क्लाइंट से डेटा निकलवाना, उससे क्वेश्चंस पूछना, उसके रिस्पॉन्सेस के जवाब फ्रेम करना, so it revise it all needs the knowledge of behavioral science, ठीक है। behavioral science means how to behave with humans, ठीक है। so knowledge of human behavior is very very essential for us to discharge our duties and obligation efficiently and effectively, ठीक है। तो we should be having a good knowledge of behavioral sciences, ठीक है। then auditing and statistics and mathematics, ठीक है। तो अब आप जब सैंपल्स के बेसिस पे ऑडिट होता है, ऑडिट इज नॉट 100%, राइट, इट्स अ रीजनेबल एश्योरेंस। अभी अपन आगे कवर करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस। वी अंडरस्टूड दैट audit is an assurance engagement because it provide confidence to the users of the financial statement, right? Then we perform reasonable assurance, and in reasonable assurance we do sample based audit, ठीक है। तो अगर आपको सैंपल बेस्ड ऑडिट करना है तो आपको स्टैटिस्टिक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे रैंडम सैंपल निकलता है, कैसे मॉनेटरी यूनिट सैंपल निकलता है, कैसे हैफज़ार्ड सैंपलिंग होती है। तो सैंपलिंग के बहुत सारे टाइप्स हैं। सो ऑडिट एंड सैंपलिंग बोथ आर रिलेटेड, ठीक है। फिर आपको मैथमेटिक्स की भी जरूरत होती है। लेट्स सपोज आपको इट्स ऑल अबाउट नंबर्स इन ऑडिट्स, ठीक है। तो यू शुड बी वेरी गुड इन मैथ्स ऑल्सो फॉर बीइंग अ गुड ऑडिटर, ठीक है। आपको फिर कंप्यूटर्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। आज की डेट पे इट्स ऑल कंप्यूटर बेस्ड ऑडिट्स, जहां पे आपको एक्सेल स्प्रेडशीट मिलती है, देन यू नीड टू एनालाइज दो शेड्यूल्स, आपको ये देखना पड़ता है कहाँ पे दिक्कतें हैं, ठीक है, एंड यू नीड टू ऑडिट इट। सो इट्स ऑडिटिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। एंड देन ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपको ये भी पता होना चाहिए कंपनी कैसे पैसे बना रही है, कैसे उसका यूज कर रही है, आपको उसके कैश फ्लोज के बारे में पूरा पता होना चाहिए, वो कैसे अपना वर्किंग कैपिटल मैनेज करती है। सो ऑडिटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट आल्सो गो हैंड इन हैंड, ठीक है। एंड देन ऑडिटिंग एंड प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन मींस कॉस्टिंग, तो वो कैसे कॉस्टिंग करती है, कैसे वो कॉस्ट निकालती है, क्योंकि कॉस्टिंग विल बी यूज्ड इन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, ठीक है। तो कॉस्टिंग कैसे निकालती है, व्हाट आर इट्स कॉस्ट सेंटर, कैसे वो अपनी कॉस्ट को मॉनिटर करती है, कैसे वो अपनी पेरोल कॉस्ट को मॉनिटर करती है। तो ये सारी चीजें अपन को समझना पड़ेगा। तो मैंने बोला ऑडिटिंग इज रिलेटेड टू ईच एंड एवरी फील्ड इंक्लूडिंग अकाउंटिंग, लॉ, behavioral science, economics, statistics, maths, data processing, financial management and production. तो auditing is a versatile, it's an versatile means सारी जगह पे फैला हुआ फील्ड है। ऑडिटिंग इज इंटर रिलेटेड टू मेनी डिसिप्लिन्स, डिसिप्लिन मींस वेरी वेरी, सो द क्वेश्चन इज inter interdisciplinary nature of auditing, relationship with diverse subjects. So auditing is related to accounts, it's related to law, it's related to economics, it's related to behavioral science, statistics, mathematics, data processing, मतलब बिना कंप्यूटर्स के ऑडिट नहीं हो सकता। So both data processing and auditing are interrelated, then auditing and financial management are interrelated, auditing and productions are interrelated, ठीक है। अभी चलते हैं अपन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट के ऊपर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, ठीक है। एस देखो, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, अभी आपके सामने एक वर्ड आ रहा है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अभी आपने ऑडिट समझा, ऑडिट में आपने क्या समझा, जहां पे मैंने आपको रिलायंस की ऑडिट रिपोर्ट दिखाई, जहां पे सबसे पहला लिखा था इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। फिर नीचे सबसे टू दी मेंबर्स ऑफ
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फिर लिखा था ओपिनियन पैराग्राफ, ठीक है। मैंने आपको ऑडिटिंग की डेफिनेशन कैसे लर्न करवाई, इट्स एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका, ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, किसकी, ऑफ एन एंटिटी, ठीक है, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, किस लिए कर रहे हैं हम ऑडिट, विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन, ठीक है। तो ये ऑडिट की मैंने आपको डेफिनेशन लर्न कराई। फिर इंडिपेंडेंट बोला मैंने, इंडिपेंडेंट क्या होता है, योर जजमेंट इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द जजमेंट ऑफ अनदर पर्सन, ठीक है। फिर हमने इंडिपेंडेंट के बाद पढ़ा with a view to express an audit opinion thereon। तो audit opinion देने के लिए the purpose of an audit is to express an opinion, but before you express an opinion आपको कुछ करनी पड़ती है चीजें। तो क्या है, आपको ये देखना पड़ेगा कि जो अकाउंट्स बने हैं इज इट विद रेफरेंस टू दी बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स में जो एंट्रीज है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एंट्रीज है, द अकाउंट्स प्रिपेयर्ड आर इन रेफरेंस टू दी बुक्स एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब कोई भी एंट्री छूटी नहीं है इन द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन। जो एंट्रीज है दीज आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, अप्रोप्रिएट एविडेंस। फिर जो इंफॉर्मेशन बनी है दैट इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉपर डिस्क्लोजर्स है। और हमने बोला ना ओपिनियन पैराग्राफ में क्या लिखता है तू, ट्रू एंड फेयर व्यू। तो आपको ये देखना पड़ेगा द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू, है ना। और हम ये भी लिखते हैं दीज आर इन कंफर्मिटी विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मैंने आपको ऑडिट रिपोर्ट दिखाई तो वहां पे the financial statements are properly classified, described and disclosed in conformity with the accounting standard and the financial information is क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। तो ये सारे पॉइंट्स आपको माइंड में बैठ गए, ठीक है। फिर हमने बोला ऑडिट और अकाउंट्स भी रिलेटेड है, ऑडिट और लॉ भी रिलेटेड है, ऑडिट और इकोनॉमिक्स भी रिलेटेड है, ऑडिट और बिहेवियरल साइंस भी रिलेटेड है, ऑडिट और स्टैट्स भी रिलेटेड है, ऑडिट और मैथ्स भी रिलेटेड है, ठीक है। तो आपने ये सब पढ़ा। अब आ जाते हैं ऑडिट को गवर्न करते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जो कि एसए 200 सीरीज से शुरू होते हैं। तो एसए 200 जो है ना, दीज आर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अभी आपको इतना नहीं समझ आएगा बट लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट आर दी गवर्निंग प्रिंसिपल्स which help us in auditing the financial statements, ठीक है। तो एसए 200 बोलता है what is the overall objective of the independent auditor and the conduct of an audit in accordance with the standards on auditing। तो ये बोलता है overall objectives of the independent auditor and the conduct of audit in accordance with standards on auditing। तो आईसीआई ने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बता रखे हैं जिसके बेसिस पे ऑडिट होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑडिट का कौन से एसए में लिखा है, तो एसए 200 जो कि बोलता है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, ठीक है। तो इसमें दो पार्ट है, एक है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव किसका, एक ऑडिटर का, दूसरा एन कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसए। तो एसए 200 बोलता है एक ऑडिटर को इंश्योर करना है दैट ही कंडक्ट्स ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसए एसेस, ठीक है। मतलब एसए 200 से लेके एसए 800 की सीरीज तक चलता है, ठीक है। तो आपको इन एसेस के अकॉर्डिंग करना है आपको, ठीक है। तो एसए 200 बोलता है कि व्हाट इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको रीजनेबल अश्योरेंस लेनी है, आपको एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं लेनी, आपको रीजनेबल अश्योरेंस लेनी है। क्या कि फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है उनमें कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। आपको क्या लेनी है, रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है दैट फिनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंटेन मटेरियल मिसस्टेटमेंट। गलती हो सकती है लेकिन मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं हो सकती। मटेरियल मींस बहुत बड़ी, मतलब इतनी मटेरियल है। लेट सपोज मटेरियलिटी कैसे डिफाइन करता है एक ऑडिटर, कई लोग बोलते हैं 1% ऑफ रेवेन्यू इज मटेरियल, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन दिस entity to entity, but a misstatement cannot be more than material। अगर वो more than material है तो ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने बोला the objective of an auditor is to obtain reasonable assurance that the financial statements are free from material misstatement, whether due to fraud or error, thereby enabling auditor to express an opinion on whether the financial statements are prepared in all material respect in accordance with the applicable FRF। तो ये अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया लेकिन मैं आपके लिए तोड़ता हूँ। मुझे क्या लेनी है, रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल मींस इट्स मोर देन लिमिटेड एश्योरेंस बट लेस देन एब्सोल्यूट एश्योरेंस। रीजनेबल मींस एक मुझे अच्छी खासी एश्योरेंस लेनी है दैट द financial statement
इज फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट दो वजह से हो सकता है, या तो कंपनी की इंटेंशन ही गलत करने की थी, फ्रॉड, या फिर कंपनी से गलती से वो चीज हुई है, एरर। ठीक है, तो मैंने बोला द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेकन एज अ होल, मतलब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भी ऐसी गलती नहीं है जो मटीरियल मिसस्टेटमेंट है, मतलब टोटल मिला के कोई भी इतनी गलतियां नहीं है जो कि मटीरियल है। मतलब यू हैव टू aggregate all the mistakes and then see that none of the total of these mistakes does not exceed so as to make it material। ठीक है, तो मैंने बोला to obtain reasonable assurance that whether the financial statement as a whole are free from material misstatement whether due to fraud or error, thereby enabling an auditor to express an opinion on whether the financial statements are prepared in all material respect in accordance with an applicable FRF। अभी चलते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिपोर्ट पे। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूं बेसिस फॉर ओपिनियन। ठीक है, एक सेकेंड, की ऑडिट मैटर, then learn, then read once auditor's responsibility। Let's read this paragraph। ठीक है, मैं आपको ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैराग्राफ दिखाता हूँ। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, now it will be auditor's responsibility। ठीक है, our objective, what was the objective of an auditor? To obtain reasonable assurance whether the financial statements as a whole are free from material misstatement whether due to fraud or error, so as to enable an auditor to issue an auditor report that includes our opinion। ठीक है, reasonable assurance is a high level assurance but it's not a guarantee that an audit conducted in accordance with essays will always detect a misstatement। ठीक है, तो ये इसने लिखा, misstatement can arise from fraud or error and are considered material if individually or in aggregate they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statement। तो ये मैंने आपको पढ़ाया ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैराग्राफ, जहां पे वो अपना ऑब्जेक्टिव लिखता है। माय ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस that the financial statement taken as a whole are free from material misstatement। misstatement दो वजह से हो सकती है, फ्रॉड की वजह से या एरर की वजह से, whether does not contain a material misstatement whether caused by fraud or error, thereby enabling an auditor to express an opinion on whether the financial statements are prepared in accordance with applicable FRF। FRF का मतलब क्या होता है? let's understand from the audit report। ठीक है, FRF का मतलब होता है these Ind AS। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, किस फ्रेमवर्क के अंदर रिपोर्टिंग हो रही है, दैट इज नोन एज FRF। तो मैंने बोला मेरा पर्पस क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू ऑब्टेन reasonable assurance that financial statement taken as a whole are free from material statement so as to enable me to form an opinion that the financial statement have been prepared in accordance with the applicable FRF। तो मेरा क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस लेना। रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट इट्स नॉट अ गारंटी कि अगर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट के हिसाब से ऑडिट हुआ है तो सारी गलतियां मिल जाएगी। लेकिन हाँ, हम ये भी नहीं बोल रहे कि इट्स अ लो लेवल ऑफ एश्योरेंस। लो लेवल एश्योरेंस मींस कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस टू द यूजर्स, राइट। तो मैंने बोला रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट ये गारंटी नहीं है। गारंटी मींस ये जरूरी नहीं है कि सारी गलतियां हमने पकड़ ली होगी एज एन ऑडिटर। ठीक है, but it's a high level of assurance। So what is our objective as per SA 200? To enable to have a reasonable assurance that the financial statement as a whole are free from material misstatement whether due to fraud or error, thereby enabling auditor to express an opinion that the financial statements have been prepared in accordance with the financial reporting framework, that is accounting standards or the Indian accounting standards notified under section 133 of the Companies Act। ठीक है, तो मैंने बोला ये क्या बोल गए सर आप, आपको फटाफट बोल, लेकिन लेट मी ब्रेक फॉर यू। रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है, हम कोई गारंटी नहीं देते, हम एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस देते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेकन एज अ होल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरे लेवल पे इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये हम इसलिए लेते हैं, हमारा ये ऑब्जेक्टिव इसलिए है ताकि हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे सके जो ये कहे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद FRF। जैसे इसने ये कहा दैट इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन and based on the consideration the financial statements are in conformity with the
इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो फिनेंशियल हमें क्या लेना है, रीजनेबल एश्योरेंस, फिनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ताकि हम अपना ओपिनियन दे पाए क्या कि फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इन कंफर्मिटी विद द एप्लीकेबल एफआरएफ, जो कि रिलायंस के ऑडिटर ने ऑडिट रिपोर्ट में लिखा है। और दूसरा मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय एसएस इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स फाइंडिंग, ठीक है। तो अगर आपको कोई गलती मिली है दैट इज मोर देन मटेरियल, तो आपको फिर SA 705 मॉडिफिकेशन इन दी ऑडिटर्स रिपोर्ट, वो वाला स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। वो अभी अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये क्या कह रहा है, आपके दो ऑब्जेक्टिव है, एक तो रीजनेबल एश्योरेंस लेना, दूसरा आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिपोर्ट करना, ठीक है। और अगर कुछ गलती मिली तो आपको कम्युनिकेट करना इन अकॉर्डेंस विद एसेस। तो आपके दो ऑब्जेक्टिव है, एक तो आपको रीजनेबल एश्योरेंस लेना है, अगर आपको कुछ गलतियां मिलती है तो उसको आपको कम्युनिकेट करना है, ठीक है। So let's revise meaning of audit. Independent examination of a financial information अपने of an entity with a view to express an audit opinion thereon. Objective क्या है? To obtain reasonable assurance and to report on the financial statement. दो objectives है मेरे, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिए। क्या reasonable assurance लेनी है? That the financial statement as a whole are free from material misstatement, चाहे वो fraud की वजह से हो, चाहे वो error की वजह से हो, so as to enable me to express an opinion that the financial statements have been prepared in all material respect in accordance with the applicable FRF, ठीक है। अब आ जाते हैं scope of audit. So अच्छा, let's cover this in our next class. Scope of audit we will cover in our next class, ठीक है। तो अभी हमने meaning of audit, objectives of audit and interdisciplinary linkage between audit and other subjects, और हमने brief of audit पढ़ा, ठीक है। So we will try to cover scope of audit, inherent limitations of audit in our next class, ठीक है। So that's it for today. Thank you guys for joining in. Do let me know what I need to improve upon so as to articulate things much better. But yeah, your opinion do matter to me. But hopefully you like the video, and let me know if you need much more practical insights and if I need to add much more practical details to it so that I can do in my subsequent lectures. So that's it for today. Enjoy the day. Bye bye. Have a good day.